Okay, so in the previous session we discussed the formation of differential equation, and today we'll begin with solving question. So let us take question. Find the differential equation of y equals ax square plus bx plus c. So we want to form the differential equation of this given equation, rather expression. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होगा कि कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. So if we see here, the number of arbitrary constant is 3. A, B and C. There are 3 arbitrary constants. So it means that we need to differentiate this given expression thrice. So let us differentiate it. So first time when we differentiate it, dy by dx, we will get 2ax plus b. This is what we are going to get. Next, again we'll differentiate it. So d2y by dx2 will be 2a plus 0. I'm not writing that 0. Okay. Next is 3 times पूरा था ना differentiate करने को. So d3y by dx3 is 2 or 0. It will be 0 because constant का differentiation क्या होता है? 0 होता है. So it will be 0. Now see, whatever we got at the end, it does not contain any arbitrary constant. So this is it. This is the equation required. अगर इसमें कोई arbitrary constant रहा था, suppose ऐसा कुछ आता कि d3y by dx3 is equals to say something a plus b, then हम लोग को उसको a और b को eliminate करना होगा. पर क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें कोई arbitrary constant है ही नहीं, तो हमको वो elimination वाला पार्ट में नहीं जाना पड़ेगा. बस this is it. This is our answer. ओके. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो ये जो dy by dx लिखे हैं ना, इसको हम y बार भी लिख सकते थे. सो अगर ये लग रहा है ऐसा कि ये बहुत लिखना पड़ता है, dy by dx 4 अल्फाबेट्स लिखना पड़ गया, सो यू कैन राइट दिस. इसको y डबल डैश y ट्रिपल डैश. ठीक है. तो इन दिस वे आप थोड़ा सा कम लिख सकते हो. यू कैन सेव इंक एंड टाइम. सो दिस इज द आंसर. Okay, now see this question. Again same thing, we need to form the differential equation. तो भाई सबसे पहला बात तो ये चेक करना होगा कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या नहीं. एज वी कैन सी देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स a एंड b. फिर से वही बात, डिफरेंशिएट करो. मैं डायरेक्ट y डैश लिख रहा हूं, नॉट राइटिंग dy by dx. y डैश विल बी sin x का डिफरेंशिएशन क्या कांस्टेंट का है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x. एंड cos x का माइनस sin x होता है, सो पहले ही हम माइनस साइन लिख दिए. ठीक है. So it will be minus b sin x. This is our first expression or first relation which we have obtained after first differentiation. अभी क्योंकि दो यहाँ पे वेरिएबल है, n का वैल्यू यहाँ 2 है, so we need to differentiate it twice. तो अब डबल डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा वापस से देखो, माइनस a sin x माइनस b sin x का डिफरेंशिएशन cos x. ठीक है. अब यहाँ देखो दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, and whatever we have obtained at the end contains this arbitrary constant. तो क्या करना पड़ेगा भाई, उसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा. So now we'll eliminate a and b from here using these three equations. So if you can see, अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखो y double dash equals to take minus common, so what we'll get, a sin x plus b cos x. Isn't it same as this first one? ध्यान से देखो. So what we can say, y double dash is equals to minus y हो गया, substitution done, a और b eliminated. So this is the required differential equation. What we'll say,
y double dash plus y is equals to 0, or you could have also written it as d2y by dx2 plus y is equals to 0. This is the required differential equation. Okay, it's very simple. Formation is very simple. Okay, now look at this question. Y equals to a cos ln x plus b sin ln x. तो फिर से वही बात भाई, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है. Here also n is 2, so we differentiate it twice. तो करते हैं डिफरेंशिएशन. So y dash will be, देखो cos का क्या होता है माइनस साइन, so it will be minus a sin ln x, और फिर चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे ln x का डिफरेंशिएशन which is 1 by x. See, if you know differentiation तभी ये, अगर differentiation नहीं आया तो पहले वो सीखा हुआ फिर समझ में आएगा, ठीक है. प्लस b as it is, sin का differentiation is cos, so cos ln x times 1 by x. अब देखो यहाँ पे हम x LCM ले सकते हैं, we can also write it as this. X is the LCM, we have got it as minus a sin ln x plus b cos ln x. This is what we have obtained so far. अब इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर करने जाएंगे तो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा करना, मतलब यहाँ पे वो कौन सा फॉर्म आ जाएगा है ना, नीचे में u by v वाला फॉर्म आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो वैसा नहीं करेंगे हम लोग, क्या करते हैं ये x को लेफ्ट साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं. बोलने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसी चीज को कुछ ऐसे लिख लेते हैं. What is this? Yeah, we can write it as x y bar is equals this. अब देखो अब थोड़ा इजी हो जाएगा, और अब डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है. तो लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, सो u v रूल विल अप्लाई, एंड वी नो u v का डिफरेंशिएशन क्या, एक कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट, कुछ ऐसे ही होता था. यही काम यहाँ पे करना है, ठीक है. सो क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन, मतलब y बार का डिफरेंशिएशन, so y डबल बार प्लस नाउ y बार कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन which is 1, x का डिफरेंशिएशन will be 1, so y बार टाइम्स 1, तो सिंपली हम खाली y बार ही लिखते हैं भाई. तो लेफ्ट साइड ये आया डिफरेंशिएशन इक्वल्स राइट साइड में डिफरेंशिएट करो, ठीक है. सो अगेन साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, so it will become minus a cos ln x into, फिर से वही बात चेन रूल, ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस प्लस नहीं, rather it will be minus here y minus, because cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, so प्लस माइनस माइनस it will become, तो मैंने पहले ये फ्यूचर देख लिया, into 1 by x. फिर से वही बात, x को LCM लेकर के दूसरे साइड भेज दो. So ultimately what we have obtained is x square y double dash plus x y bar is equals, मतलब x को हम लोग उधर LCM लेकर के इधर भेज दिए लेफ्ट साइड में, is equals minus of, फिर से देखो वही बात, एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, तो अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन था वही बन जाएगा, जो y का वैल्यू है वही बन जाएगा. देखो दोनों सेम है, they are differing by minus sign. Let me mark it with red color. देखो ये अंडरलाइन थिंग्स, अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये इक्वल हो जाएगा. सो डायरेक्टली आई कैन राइट इट एज माइनस वाई, या फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हो कि माइनस कॉमन ले लो एंड देन यू राइट a cos ln x plus b sin ln x. So what we have obtained is x square y double dash plus x y bar is equals minus 1. इसको भी लेफ्ट साइड लेके आ जाओ. So finally the relation which we have obtained is x square, देखो y double dash को मैं d2y by dx2 लिख दिया, ये देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, इसके बस और कुछ नहीं.
तुम y डबल डैश y डैश लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So this is the answer. This is the required differential equation. I think I should write here differentiating with respect to x. नहीं तो फिर confusion हो जाएगा कि ये इसके बाद ये statement कैसे आ गया. Now it is clear that yes, we have differentiated with respect to x, and the left side we have applied UV method, जो UV rule है, और राइट साइड में तो as it is differentiation. ठीक है. So this is it. ध्यान से देख लो, अगर मान लो कुछ डिफिकल्टी हो रहा होगा then pause the video, rewind it, watch it again. समझ में आ जाएगा. ठीक है. Okay, now look at this question. Find the differential equation of a e to the power x plus b e to the power minus x minus cy equals to 0. And the moment you see this question, you be like there are three unknown arbitrary constants. So we should differentiate it thrice. Actually नहीं, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है. यहाँ से देखो क्या. Can we write it as this? Yes, definitely. cy को उधर लेके चले गए. ठीक है. अब देखो, if I write can be written like this also. तो अगर कोई आर्बिट्ररी मतलब ऐसा कांस्टेंट जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो अगर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में हर एक पार्ट से मल्टीप्लाइड हो, मतलब समझ लेना कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नंबर उतना नहीं होगा, उससे एक कम होगा. द रीजन भी कि हम लोग एक कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट से तो डिवाइड कर ही सकते हैं बाकी सारे टर्म्स को. तो यहाँ देखो क्या हो गया. जैसे मान लो सपोज ये a by c को आई एम नेमिंग इट एज a1. ठीक है. प्लस b by c को आई एम नेमिंग इट एज b1. सो बेसिकली यहाँ पे कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. देयर वर नॉट थ्री आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. सो हाउ मेनी टाइम्स वी शुड डिफरेंशिएट इट? वी शुड डिफरेंशिएट इट ओनली ट्वाइस, नॉट थ्राइस. ठीक है. तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 होगा. Now you can solve it. So y dash will be a1 e to the power x as it is, plus इसका डिफरेंशियल अगर करने जाओ it will be b1 e to the power minus x into minus 1. फिर डबल डिफरेंशिएशन. पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं. a1 e to the power x minus b1 e to the power minus x. ठीक है. Now y double dash, again differentiating with respect to x, it will again be this, and this time minus minus plus it will become. अब ध्यान से देखो, these red underline parts are same or not. तो इसका वैल्यू क्या है? y. So instead of this we will write here y. So the answer will be y double dash is equals to 1. This is the answer. Means d2x d2y by dx2 minus y is equals to 0. This is the differential equation. This is the required differential equation. Okay, ध्यान से देखना. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग रहा था कि तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, but actually there were only two arbitrary constants. So कभी भी अगर ऐसा रहे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाइड है, तो फिर हम लोग इस तरह का काम करेंगे. ठीक है. Now see this question. ये यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, या कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर एट 1, 2. तो यहाँ पहले इक्वेशन भाई खुद से बनाना पड़ेगा, फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है. तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सर्कल का बात कर लें. आई होप यू ऑल नो इट ऑलरेडी, बट स्टिल इफ यू डोंट नो देन प्लीज फॉलो दिस. कि अ सर्कल whose center is at origin, मतलब 0, 0, and has a given radius, say radius, let the radius be a. ठीक है. तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है? x square
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मतलब कि अगर रेडियस 2 है तो 2 स्क्वायर, रेडियस 3 है तो 3 स्क्वायर, 4 है तो 4 स्क्वायर। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करें एक ऐसे सर्कल का जिसका सेंटर जो है वो 0,0 पे नहीं बल्कि से h,k पे, ठीक है, then this equation will transform as x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to a square। ठीक है, अगेन वही बात, ये a स्क्वायर की जगह पे मान लो अगर सपोज यहाँ पे रेडियस जो है वो फिक्स रहता, मान लो यहाँ पे रेडियस a नहीं बल्कि 5 रहता, तो इधर 5 स्क्वायर हो जाता। यहाँ पे भी सपोज द रेडियस इज 4, तो यहाँ 4 स्क्वायर आ जाता। ठीक है, भाई बोल रहा है हमको यहाँ पे एक नहीं, व्हाट इज द क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर सर्कल का नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर एट 1,2। फैमिली ऑफ सर्कल बोले तो मतलब ऑल दोस सर्कल्स हुज सेंटर इज एट 1,2। तो देखो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 1,2 पे हो, ऐसा बात ये कि बहुत सारा सर्कल होगा। ठीक है, नॉट ओनली वन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ सच सर्कल्स। कैसे, ध्यान से देखो, लेट मी इरेज दिस। ये कंप्लीट सर्कल नहीं बना, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, टू एन एक्सटेंड मान लो सर्कल है और ये सेंटर है 1,2। तो देखो फैमिली ऑफ सर्कल जब बोला है तो 1,2 सेंटर हो, ऐसा बहुत सारा सर्कल हो सकता है। देखो ये भी है, सो ऑल दो सर्कल्स वो सेंटर इज 1,2, सारा ही सर्कल, देखो ऐसा बहुत सारा सर्कल होगा। तो इन सब सर्कल में कॉमन बात ये है कि उनका सेंटर जो है 1,2 पे, ये है कॉमन बात। तो अलग वाला बात क्या है, ठीक है, अगर ये कॉमन बात है तो डिफरेंट बात क्या है, डिफरेंट बात ये है कि उन सब का रेडियस जो है वो अलग अलग होगा, देयर रेडियस विल नॉट बी सेम। तो क्योंकि रेडियस यहाँ पे सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको कोई आर्बिट्रेरी, एक्चुअली देखो रेडियस तो कांस्टेंट ही होता है फॉर अ पर्टिकुलर सर्कल, द रेडियस इज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फैमिली ऑफ सर्कल्स का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेडियस को हम लोग ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिखेंगे, 3 4 ऐसा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारा सर्कल्स होगा जिसका सेंटर 1,2 पे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा, मैंने बताया था ना x माइनस एच प्लस वाई माइनस के, तो वही बात x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब वो रेडियस कुछ भी हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, आर स्क्वायर। So here r will be constant, the radius will be constant, पर वो नोन नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग को फैमिली ऑफ सर्कल्स बोला है, तो ऐसा बहुत सारा होगा सर्कल, तो इसलिए हम लोग r से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, सो ध्यान से देखो कि कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आई एम नॉट राइटिंग प्रॉपर्ली पर तुम लोग लिख लेना अच्छे से। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो, पहला इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x माइनस 1 और फिर x का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस इधर क्या आएगा 2 टाइम्स y माइनस 2 और फिर y का डिफरेंशिएशन y बार इक्वल्स r स्क्वायर। सी r इज कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। If you go on to simplify it, you are going to get it as y bar और फिर या फिर dy by dx is equals to minus of this by this. This is the answer. dy by dx equals this. Or it could have also been written as dy by dx is 1 minus x by y minus 2. You can write in this way also.
तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसमें डिफिकल्ट क्या था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, नया क्या था, नया ये था कि इसमें इक्वेशन गिवन नहीं था, हम लोग पहले इक्वेशन खुद से लिखे हैं और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फाइंड किए। Okay, so this is it from this formation part. Now I'll continue with solution part in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.